Hello, Sanchay. Good evening. Hello, am I audible? Yes, Sanchay. How are you? Hi, I'm good. I'm good. मीटिंग में ओपन कर रहा हूँ ताकि सारे आ ही जाएं अभी. ठीक है. Hello everyone, welcome back to day 2 of BSides Jammu. Yesterday we learned how to spy on our own traffic and crack weak passwords. Today, things get more fun. We are moving from hello world hacking to real mischief territory. Our guide tonight is Sanchay Singh with a session called Game Hacking Meets Real World Offense. If you have ever used cheat codes in GTA, this is a grown up version. Except instead of unlimited ammo, you get unlimited CVEs. So get ready with your digital game controllers. Please welcome tonight player 1 Sanchay Singh. Hi, hello guys. Thanks a lot, Ria, for the great introduction. So yeah, let's go around and talk about game hacking. Uh, okay, so chat is open for everyone, and please do ask questions, guys. This is not a session that I really want to. I really do not want to take it as a boring session or something like this. So if you can, please go around, ask your questions. If you have anything to include, please do include in the chats, or if you want to open your mic, let's keep it like a discussion. If you have something to add, okay. So next thing that I want to ask, what's the language that you are comfortable in? Hindi is good. Hindi chalegi, या फिर shall we take it in completely English? Let me know once in the chats. हिंदी चलेगी हिंदी दोनों कंबाइन कल भी मैंने कंबाइंड ही लिया था, मतलब मिक्स कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा. ठीक है, cool. So this particular session that we talk about, this is about completely about game hacking and reverse engineering and all these kind of stuff. So mainly हम लोग इसमें जो है पूरा का पूरा cyber security का जो game hacking वाला perspective है that we usually take. Okay, so let me just go around and share the screen so that we could just understand the point. Yes. Let me know when it's visible. मैंने share कर दिया है. हाँ, विजिबल है. Okay. ठीक है. So Ria has given a good crisp introduction. Let me also tell you about who am I in a very quick manner. अच्छा, just before I start, I want to ask how many of you play games? कितने लोग games खेलते हैं? Like I'm not talking about the mobile games. I'm talking about the games that you play in the computer or PlayStation. And how many of you are from the era of Devil May Cry, Prince of Persia, Assassin's Creed, the OG era of gaming, right? And Far Cry 3, 4, 5, when they used to come, when we used to get excited कि Far Cry 4 में हिंदी आ रही है, Hindi language is there, and they have shown like Mount Everest का नीचे का पूरा इलाका and Nepal and all. So yeah, those were the games, right? आज के टाइम में डबल ए ट्रिपल ए गेम्स और ये सब तो एकदम अलग चीज है, right? मतलब it's good, right? Today's era is also good, and we have a lot of games coming in, right? GTA Gadar and GTA Punjab, damn, they are close to heart, man. So बहुत सारी चीजें हैं, and there are games that I used to play as well. So it was basically a story when I was in class 8th, right? I'll come back to it and how I started into this thing, game hacking kya hai, and how I started. I'll be telling you about that. But yeah, I am a gamer, right? I have played games since my class 8th, class 9th, and I have been playing till now. आज भी मेरे को टाइम मिलता है तो मेरा यही होता है कि let's play something, but yeah, टाइम कम मिलता है थोड़ा. And yeah, game hacker as well. So I started hacking into games and all. How many of you have downloaded games from torrent? कितने लोगों ने टॉरेंट से गेम डाउनलोड किया है कि सबने टॉरेंट से कुछ ना कुछ या गेम्स डाउनलोड किए ही होंगे बिकॉज आई गेस इंडियन पेरेंट्स आर नॉट दैट मच सपोर्टिव कि वो आपको एक गेम के लिए 2-3 हज़ार रुपए देंगे, राइट? सो पायरेट्स वे, आई एम द पर्सन जिसने टॉरेंट पे गेम अपलोड किए हैं. सो या
game hacking is one of my key things since the last many years. And ocean of games, yes, ocean of games and all type of hacks, all type of mods. There are very much customizations available. So I have been a game hacker, hacking the licenses, hacking the keys, or just simply hacking the game, or cracking the game to basically increase certain things or create modifications about a particular game. What about Denuvo? Denuvo is समथिंग डिफिकल्ट टू क्रैक विद बिकॉज डेनोवो ना बहुत सारी चीजें लेकर चलता है. डेनोवो के अंदर बहुत सारी फाइल्स है. ऐसा उसने कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. इट्स जस्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ फाइल्स एंड every file is connected with that Denuvo framework and you have to go into every file and break that connection. तो उसमें बहुत सारे clashes आते हैं. कई बार आपका गेम क्रैश होने लगता है. That's why it takes a lot of time. It's just like cryptography कि आप जो हैकर है ना उसको एक्चुअली में रोक नहीं सकते हो बट यू कैन डिले द हैकर. कि वो आप उसको ऐसा एल्गोरिथम दे दो जो वो शायद अपने आज के कंप्यूटर में कर ही ना पाए. सो जस्ट लाइक दैट डेनोवो उतना ही टाइम ले रहा है. Yes, I have made not, I would not say mod APKs. I mostly work on the PE and DLL based executables and Windows based mainly, right? So, okay. I'm founder of Hackersville community, which is basically we started around 4 or 5 years ago. It's a cybersecurity training firm, which we have the office in Delhi and ये pan India grow हो रहा है. We have like taught more than 2-3 thousand students with it and more than 25,000 students in the boot camps and the webinars that we have taken the last 3-4 years. उसके अलावा we have also started Cyber Sangam meetups in Delhi, which is right now in Delhi only, but we'll try to see expand whenever possible. And yeah, I am working with certain companies like Make Intern, Upgrad as a subject matter expert. I have also the lead at BSides Agra as of now, right? So the call for volunteers is open for BSides Agra as well. And if you have any motive to go around with it, we are open. We are welcome. We are welcoming you for that as well. Yeah, so I've given or I'm giving right now the corporate trainings at a lot of companies, Cognizant, KPMG, were to name some, and a lot of many other companies which are private and government as well. I like the I've also given trainings to police, cyber police, and the professors at various universities like IIT Kanpur or Delhi University and all. So yeah, active part of null community around India. Wherever I see null communities, it's something that that I really like about. Yeah. Okay, so my journey I started in class 8th, right? And when I got my laptop, obviously एक होता है लड़कों के अंदर एक कनेक्शन होता है that जैसे आप कोई गेम उठाते हो ना तो आपको उसकी तरफ एक लगाव हो जाता है, राइट? एंड व्हेन यू एंड दैट गेम, जब आप एंड कर देते हो उस पर्टिकुलर गेम को, यू बेसिकली थिंक दैट यार इसके अंदर ना और क्या हो सकता है, राइट? एंड फॉर मी दैट गेम वाज सैन एंड्रियास, राइट? मैंने GTA सैन एंड्रियास खेला, सबने खेला होगा. आई गेस नोबडी इज देयर जिसने GTA सैन एंड्रियास नहीं खेला हो. GTA सैन एंड्रियास नहीं खेला नहीं तो सुना जरूर होगा उसके बारे में. सो San Andreas was my first game that I started and I picked and I liked it a lot. एक कनेक्शन बन गया, उसके अंदर चीजें करनी थी. पहली बार एंड किया बिना स्टोरी के किया, दूसरी बार खेलना शुरू किया स्टोरी के साथ खेला, तीसरी बार खेला और ज्यादा प्यार से खेला, फिर उसके बाद मन भर गया लेकिन कुछ करने का मन था उसके साथ. ऐसा था कि आई वॉन्ट टू प्ले दैट गेम अगेन बट हाउ डू आई गो अहेड विद दैट गेम. मैं क्या करूँ उसके साथ. मैं चाहता था कि आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन मिशन, या फिर अगर मैं अपना नाम लिखूँ तो मेरा फेवरेट बाइक स्पॉन हो जाए. हाउ डू आई डू दैट? हाउ डू आई स्पॉन PCJ 600 or a Buffalo when I type in my name in GTA Vice City or San Andreas? How do I do that? वो करने की इच्छा से खुद का मिशन बनाने की इच्छा हुई एंड स्टार्टेड डाउनलोडिंग सर्टेन मॉड्स, फाउंड आउट अबाउट मॉड्स एंड ऑल. एंड बहुत इजी और सिंपल तरीका था उस टाइम मॉड्स को डालने का. एंड दैट वाज नॉट समथिंग from which I was getting fun. And that was the point when I started कि यार क्या किया जाए. And one of my friends said that you should just go around the game files, क्या पता कुछ मिल जाए. And when I was going into the game files, कुछ language थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी. And my friend said that it's something like C++. बाद में समझ में आया वो C++ नहीं C hash है, right? And वो थी C++. So sorry, C hash, but it felt like C++ because it was the same format, same formatting, same syntax and semantics. So
आई वॉज लाइक 11th क्लास में ऑलरेडी सी प्लस प्लस पढ़ना ही है, तो वाई नॉट स्टार्ट राइट नाउ. सो the transition that you go from 8th to 9th, I picked up the books, I picked up the applications और learn C++ by solo learn और उनको डाउनलोड करके उन पे पढ़ने लगा. एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद मेरे को इतना C++ आ गया कि मैं कोड तो नहीं लिख सकता था, बट जो लिखा हुआ कोड है आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट कोड. And then there was the point when I wanted and went into the hacking perspective of it. Later I got to realize, okay, this is not what something tech thing is. This is reverse engineering basically. This is not engineering, software engineering or something. This is reverse engineering that I'm doing right now. And if it is reverse engineering, then it's okay. I started going into cracks. I started going into software cracking and started going into different other things like cracking the licenses or just फाइल्स को क्रैक करके बाहर निकालना. असेंबली लैंग्वेज में जाना पड़ा मेरे को, एंड दैट वाज फन टू मी. आई नेवर लर्नड असेंबली बिकॉज मेरे को रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छी लगती थी और पहले मैंने सुना रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में, फिर मैंने असेंबली पढ़ी स्टेप बाय स्टेप. नो, इट वाज ऑल हिट एंड ट्रायल एंड मेरे को मजा आ रहा था, तो मैंने सोचा यार ये भी सीख के देखते हैं. एंड द एनर्जी वाज देयर, द टाइम वाज देयर. So I started learning about architecture, about assembly, opening the laptops and checking in क्या होता है क्या नहीं होता है. कॉलेज स्कूल के पीसी, बहुत सारे पीसीओ में से तो धुआं निकल गया था बिकॉज वी वर प्लेइंग विद द बायोस ऑफ दोस पीसीज एंड कंप्यूटर लैब में लिटरली धुआं धुआं हो गया था 2-3 बार. सो we did all those things. We learned everything by building, by breaking, and me and my friends, and that is how we grew. We bricked a lot of Android phones. We did reverse engineering with Android. Micromax के phone में Galaxy S5 का ROM डाल के घूम रहे हैं. Right, that was my life back in class 9th, 10th, 11th, 12th. Coming into the college in Delhi, I'm from UP, and then एक छोटे टाउन से दिल्ली में आना was something too big for me. And the reason why I came over here in Delhi, I did BSc Honors Computer Science. The reason was to get more time around me because BTech में तो time नहीं मिलता यार, and I wanted to have more time for me so that I can do certain internships or visit Gurgaon and Noida for the meetups and conferences. और वहाँ से एक career path शुरू हुआ. I did internships on different like bug bounty and all these kind of things, and bug bounty मैं साथ साथ कर भी रहा था. वेब की internships भी थी, थोड़ा बहुत पैसे आ जाते थे. bug bounty से थोड़े ज़्यादा पैसे आ जाते थे. KFC चले जाते थे. That was the life in college, and then I stopped it when COVID happened. एक साल पूरा marketing पे focus किया, learned marketing and went all in, और उसके बाद we started Hackersville and everything over there. So that is the journey, and ultimately then going on to game hacking. I have been hacking games today as well, and from the last year onwards I've been giving a lot of workshops and talks based on game hacking, and also my research into game hacking जो मैं BSides मुंबई में usually लेकर के चलता हूँ. So the part 1 of that I gave in 2023 24, and abhi recently 2025 last month we have like worked on the part 2 of the game hacking workshop. So उस चीज को लेकर चलते हैं, and let's go with the practical stuff over here and let's understand क्या है क्या नहीं है गेम हैकिंग में, कैसे चीजें काम करती हैं, and ले दे करके how you actually learn the things, right? So about game hacking, see, this is reverse engineering we are talking about. Reverse engineering करने का मतलब है assembly language और assembly instruction से खेलना. How many of you here know about what registers are? कितने लोगों को पता है registers क्या होते हैं? एक बार chat में लिख दो. Yes. Don't raise your hand. I cannot see a lot of hands on the screen. If you can write in the chat yes or me, it would be really really good. हाँ, computer के registers, pen वाले, copy वाले registers नहीं. स्टोर कैशे मेमोरी, ठीक है, काफी सारे लोगों को पता है. जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ. सी, रजिस्टर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ समथिंग इन अ कंप्यूटर, राइट? नॉट मेमोरी एक्चुअली, बट द स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट? सबसे छोटा यूनिट जो होता है ना, वो एक रजिस्टर बोल सकते हो आप. या रजिस्टर से भी अगर मैं नीचे आऊँ तो ट्रांजिस्टर होता है, राइट? अच्छा, ट्रांजिस्टर जिसको नहीं पता, ट्रांजिस्टर इज अ 3-legged डिवाइस, और ये हम यूजुअली अपने उसमें पढ़ते हैं, राइट? क्लास 11th क्लास 12th की फिजिक्स में आता है. एंड
अल्टीमेटली ट्रांजिस्टर एक बहुत छोटा सा डिवाइस है जो कुछ इस तरीके का दिखता है, आप इसको किसी भी फॉर्म शेप में बना सकते हो, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग कैन आइदर बी ऑन और ऑफ, जस्ट लाइक योर एलईडी बल्ब, इट कैन आइदर बी ऑन, इट कैन आइदर बी ऑफ। अगर ये ऑन है तो हम बोलते हैं इसके अंदर 1 स्टोर्ड है, अगर ये ऑफ है तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर 0 स्टोर्ड है, राइट। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी टेक इट अराउंड ओवर हियर। अब द पॉइंट इज दैट वी अंडरस्टैंड कि कैसे क्या चीजें होती है। बहुत सारे आपने ये लिए ट्रांजिस्टर्स दिए, एंड यू बेसिकली फिट इट एट वन प्लेस, एंड द कलेक्शन ऑफ दीज ट्रांजिस्टर्स आर नाउ कॉल्ड एज अ रजिस्टर। ठीक है, आपने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स उठाए, उनको एक साथ रखा, आपने फॉर एग्जांपल 8 ट्रांजिस्टर्स एक ही साथ लाइन में लगा दिए, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजिस्टर्स मींस 8 बिट्स का डेटा, 8 times zeros and ones, that particular thing now becomes a register, वो रजिस्टर 8 बिट का हो गया, right? That is what we basically talk about. Now there are registers, a lot of registers, right? छोटे मोटे registers हैं, बहुत सारे registers होते हैं, और इन registers का काम होता है डेटा को इधर से उधर कैरी करके लेकर जाना from one point to another in the computer system. And usually this particular thing is it is also called as the DMA or direct memory allocation, and some registers का ये actually काम होता है. So there are multiple things that we do over here. इसको explain अगर मुझे करना हो तो बहुत simple भाषा में हम लोग usually क्या करते हैं, we have this particular thing called as storage, we have this particular thing called as our CPU, and CPU does all the micro instructions and everything. CPU has the power. For example, इस लैपटॉप में, जिस लैपटॉप में मैं करंटली ये ट्रेनिंग या फिर ये सेशन ले रहा हूँ, we have around 2.4 gigahertz as the base CPU. Usually it works around 3.5 and goes maximum up to 4, but 2.4 इसका minimum है. 2.4 gigahertz का क्या मतलब हुआ? Hertz is divided by seconds, right? Now if I remove this HZ, this is basically 2.4 gigabits of processes per seconds. ये actually में process कर सकता है, that's the speed. That means 2400 megabytes of processes per second, right? It can actually process. Now this is something good, we can understand कि हाँ यहाँ पे इतनी speed आपको मिल रही है. But what about the hard disk, or what about your actual the storage device? इसके पास तो इतनी frequency है ही नहीं. इसकी frequency कहाँ तक जा रही है? इसकी frequency या फिर इसका अगर मैं बात करता हूँ speed का, मैक्सिमम एक हार्ड डिस्क की स्पीड 50 से 100 mbps रीच हो रही है. सो दिस इज 50 मेगाबाइट्स पर सेकेंड. आप एसएसडी भी लगा लोगे ना, एक एवरेज एसएसडी भी 500 से 600 ही दे पाएगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा पर सेकेंड. नाउ द पॉइंट इज दैट अगर इस स्पीड से डेटा ट्रांसफर हुआ सीपीयू के पास, तो सीपीयू इज वेस्टिंग इट्स पोटेंशियल. ऐसे केस में आपको एक और चीज चाहिए जिसमें आप बेसिकली डेटा स्टोर कर पाओ, राइट. बिकॉज अगर आपको तेजी से डेटा भेजना है तो उसके लिए कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें तेजी से डेटा स्टोर हो जाए. एंड जब आप बहुत ज्यादा स्पीड में डेटा को स्टोर कराते हो ना, तो वो चीज परमानेंटली नहीं स्टोर हो सकती आपके डिवाइस में. एंड दैट इज व्हाई वी क्रिएटेड अ डिवाइस कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम. एंड ये सारा डेटा एक्चुअली में रैम में जाने लगा, राइट. एंड अल्टीमेटली ये सारा रैम से डेटा सीपीयू में जाने लगा, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ बिकम्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वेयर हमारा डेटा जो है रैम के थ्रू होता हुआ सीपीयू में जाता है, एंड सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, बिकॉज रैम हैज रफली द सेम स्पीड एज द सीपीयू. फॉर एग्जांपल अगर 2400 वाला यहाँ पे सीपीयू है, तो रैम भी उसके अंदर DDR4 2100 मेगाहर्ट्ज या फिर 2100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड वाली लगी होगी. That means fairly the same speed, and you can actually send the data at a very very high speed to the CPU, and ultimately CPU का पोटेंशियल इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता. तो आपके बहुत सारा जो कैशे है वो रैम अपने अंदर स्टोर करके रखता है, फिर सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो ज़्यादा कॉल होते हैं CPU उनका कैशे अपने पास स्टोर करके रखता है. बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. द पॉइंट इज ये जो बस है जिससे डेटा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, ये बस आखिरकार चीज क्या है? दिस इज बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, राइट. सो अगर इस बस का मैं छोटा सा क्रॉस सेक्शन बड़ा करने की कोशिश करूं और मैं बोलूं कि मेरा पीसी 8 बिट आर्किटेक्चर का है, दैट मीन्स ये डेटा कुछ इस तरीके से बटा हुआ होगा. द बस लाइन्स यूजुअली गो लाइक दिस: 1 2 3 4 5 6 7 and 8.
नाउ दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस, और ये पाइप की तरह होता है, मतलब पीछे से जो पानी आता है वो पानी सबसे पहले निकलता है, इट्स लाइक अ क्यू, राइट। सो बेसिकली जो भी चीज पहले आएगी वो पहले निकलेगी बाहर। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जितना भी डेटा है इट वुड गो लाइक दिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर थिंग इज सेंडिंग द डेटा, हार्ड डिस्क जो है वो रैम को डेटा भेज रही है। लेट्स से द डेटा इज 10110 एंड देन 100। सो ये डेटा कुछ इस तरीके से जा रहा है, 10110 100, 8 बिट का डेटा है। तो पहले ये वाला डेटा आएगा अंदर, फिर ये वाला डेटा इधर से इधर आएगा, इधर पीछे नया डेटा आ जाएगा, फिर दिस डेटा वुड जंप ओवर हियर, देन दिस वुड हैव न्यूअर डेटा। तो इस तरीके से नया डेटा आता रहेगा। यस ऑब्वियसली आर्किटेक्चर 64 और 32 बिट और x86 बिट भी होता है, बट आई गेस स्क्रीन पे मैं 64 और 32 बिट बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा मेसअप हो जाएगा। सो आई एम एक्सप्लेनिंग विद द 8 बिट सिनेरियो, ठीक है, इसको आप इमेजिन कर सकते हो 32 बिट में क्या हो रहा होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। तो ये जो बस होती है ना, दिस बस इज एक्चुअली हैविंग दैट आर्किटेक्चर, कि कितने बिट का आर्किटेक्चर है आपके सिस्टम में वो यहाँ डिफाइन होता है कि वो 32 बिट है 64 बिट है। तो हम लोग अभी 8 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं कि बेसिकली 8 बिट का डेटा एक बार में आगे जा सकता है। नाउ इमेजिन दिस डेटा इज बेसिकली गोइंग, तो ये पूरा का पूरा डेटा उठा करके पता है कहाँ डाल दिया जाएगा? दिस डेटा वुड बेसिकली गो इनटू समथिंग कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन रजिस्टर। क्योंकि क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन ही तो आ रही है, वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन रजिस्टर 8 बिट का बनाया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसके अंदर डाल दिया जाएगा, राइट। सो द डेटा इज 10110 100 एंड अल्टीमेटली लेट्स से आपने कीबोर्ड से 2 नंबर इनपुट किए हैं, राइट। आपने कीबोर्ड से 2 नंबर इनपुट किए हैं, जिसमें से पहला नंबर जब आपने इनपुट किया तो वो तो अभी ताज़ा ताज़ा इनपुट हुआ है, तो अल्टीमेटली दैट वुड गो डायरेक्टली टू द रैम, और दूसरा इनपुट डायरेक्टली कीबोर्ड से हुआ है, राइट। सो लेट्स से देयर आर 2 नंबर्स व्हिच यू वांट टू ऐड। तो जब आप ऐड करते हो तो आप पहला नंबर तो डाल देते हो, एंड देन आप उसे इंस्ट्रक्शन बताते हो क्या करना है, एंड देन फिर आप उसे तीसरा नंबर मतलब दूसरा नंबर देते हो। तो यू आर एक्चुअली गिविंग 3 थिंग्स, यू आर गिविंग द फर्स्ट नंबर, राइट, यू आर गिविंग द ऑपरेशन कि आपको प्लस करना है माइनस करना है क्या करना है, फिर आप सेकंड नंबर देते हो। तो ये तीनों चीजें एक्चुअली में एक रजिस्टर के अंदर बंद के चली जाती है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली गोज इन एन इंस्ट्रक्शन, और ये पूरी की पूरी चीज उठ करके एक रजिस्टर में जाके स्टोर होती है। सो लेट्स से कि ये पूरा का पूरा जो डेटा आ रहा है इसके अंदर वो सब कुछ है दैट यू एक्चुअली वांट टू डू। सो होगा क्या कि इसके अंदर से ना डेटा फेच करके निकाला जाएगा। ये है आपका इंफॉर्मेशन रजिस्टर। इंफॉर्मेशन रजिस्टर के अंदर ये जो 2 चीज होती हैं ये जाएंगी ऑप कोड में। लेट्स से दिस इज योर ऑप कोड और ऑपरेशन कोड विच डिफाइंस कि अगर आप 0 0 लेते हो तो ये बेसिकली लेट्स से माइनस होगा, अगर आप 0 1 लेते हो तो डिवाइड होगा, अगर आप 1 0 लेते हो तो ऐड होगा, अगर आप 1 1 लेते हो तो मल्टीप्लाई होगा। दिस इज द ऑपरेशन कोड टेबल, and then these 3 things would basically go to a newer register which would be 110, and this is basically called as data register. Let's say data register 1, ये वाली जो चीज जा रही है ये डेटा रजिस्टर 2 में जा रही है, बिकॉज आपने क्या किया है, नंबर्स इनपुट किए हैं। तो ये बाइनरी में पहला नंबर हो गया, दिस इज द सेकंड नंबर इन द बाइनरी, राइट, एंड देन दीज 2 नंबर्स वुड बी एडेड टुगेदर। तो इनका एडिशन क्या आएगा, इफ यू डू एडिशन इन बाइनरी 110 plus 100, the answer would be 1010, right? So ultimately this would be, अगर नॉर्मली भी करके देखो तो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली नंबर 4 एंड दिस इज एक्चुअली नंबर 5, right? So the answer should basically come 9, which is actually this 8 plus 2, okay, this is, sorry, my bad, this is 6 and 4, and you get actually 10, right? So this is what it is. So ultimately ये हमारे पास हो गया 110 एंड 100। सो दिस इज योर फर्स्ट डेटा, दिस इज सेकंड डेटा। अब ये जो डेटा जाएगा ये एक्चुअली चला जाएगा क्या कहते हैं, एक और रजिस्टर में, जो कि आपका अगेन वन ऑफ द डेटा रजिस्टर वुड बी देयर, और फिर ये डेटा रजिस्टर जो है, डेटा रजिस्टर 1, डेटा रजिस्टर 2, इसका डेटा रजिस्टर 3 में चला गया, एंड ले दे करके फिर ये चीज को आउटपुट रजिस्टर में भेज दिया गया। सो दिस इज योर आउटपुट रजिस्टर, एंड आउटपुट रजिस्टर में जब ये डेटा जाएगा तो ऑब्वियसली वो जाकर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। सो फॉर वन पर्टिकुलर मेमोरी इंस्ट्रक्शन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आपको सिर्फ एडिशन भी करना है तो उसमें पहले क्या होगा,
पहले इनपुट रजिस्टर से डेटा आपको उठा के इंफॉर्मेशन रजिस्टर में डालना पड़ेगा, राइट। इंफॉर्मेशन रजिस्टर के कौन से पार्ट में डालना पड़ेगा? ये 110 आ रहा है, राइट। सो दिस इज लाइक इफ यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस प्लेस 0 1 2 3 4 5 6 7 बिकॉज यू राइट द नंबर्स फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। सो ये कौन सा हुआ? 5 6 5 to 3, राइट। सो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन रजिस्टर के 3 से 5 तक बेसिकली जो डेटा है वो आपका इसमें आ जाएगा। फिर इनपुट रजिस्टर से आपने और डेटा उठाया हुआ है जो 0 से बेसिकली जो आईआर के 0 से 2 में जाएगा। देन आप बेसिकली आईआर का ये वाला डेटा 3 से 5 वाला डेटा को उठाकर कहाँ भेज रहे हो? एक डेटा रजिस्टर में डाल रहे हो। देन अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन रजिस्टर का जो 0 से 2 वाला डेटा है वो भी आप एक डेटा रजिस्टर में डाल रहे हो। देन ये 1 है, मान लो ये 2 है, देन यू आर एडिंग डेटा रजिस्टर 1 एंड डेटा रजिस्टर 2 एंड फिर ये चीज़ आप डेटा रजिस्टर 3 में डाल रहे हो। देन दिस डेटा रजिस्टर 3 इज बीइंग सेंट टू द आउटपुट रजिस्टर। तो इतना काम हो रहा है, राइट। यू कैन एक्चुअली सी दैट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग अ स्मॉल एडिशन, राइट। एंड दीज ऑल थिंग्स आर रिटन इन अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो भी हम यहाँ पे इधर से उधर चीजें डाल रहे हैं इनको मूव इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है, MOV। एंड ये जो मूव इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन्हीं को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर बेसिकली देयर, जो हम यहाँ पर देखते हैं। इफ आई गो बैक टू द ब्राउजर एंड टेक यू टू assembly add function, right? So there are multiple memory instructions that you have to put in over there, and you have to go around with this. So ये जितना भी चीजें होती है when you actually move around with the things, all these move instructions and this EBX, EAX, variable one and all these things, these are all your memory instructions। ये वही मेमोरी इंस्ट्रक्शंस है। ये डेटा रजिस्टर है, देखो EAX इज अ डेटा रजिस्टर, वेरिएबल 1 इज योर इन्फॉर्मेशन रजिस्टर, वहां से उठकर EAX में डेटा जाएगा, फिर EAX का डेटा EBX में जा रहा है और फिर लास्ट में उस वेरिएबल 1 EBX का डेटा वापस वेरिएबल 1 में जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली डन ओवर हियर एंड ये सब कुछ एक्चुअली में असेंबली में आप कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली लिटरली टच द हार्डवेयर लेवल थिंग्स इन योर असेंबली लैंग्वेज। सो असेंबली लैंग्वेज का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हम एक्चुअली में हार्डवेयर से बात करना चाहते हैं। एंड ये असेंबली लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू गो विद द रिवर्स इंजीनियरिंग। अभी मैंने सिर्फ 8 बिट का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया है। इमेजिन अगर ये 64 बिट होता तो ऑपरेशन कोड के लिए कितनी जगह होती है? अभी तो 2 से हम 4 ऑपरेशन बना पा रहे हैं, 3 होते तो 8 ऑपरेशन बना पाते हैं, और आज की डेट में हम 8 बिट तो सिर्फ ऑपरेशन को दे देते हैं। और उसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू बेसिकली put in the data and do or carry out our instructions. So that is how the overall thing is working. इतना समझ में आया सबको? Please let me know with a yes or no in the chats. Okay, that's great. So moving forward, let's go around with कि ये instructions और ये चीजें actually में हमें कैसे help करती है when we want to see something inside a game, right? So 2-3 चीजें हैं यार। देखो गेम में आप क्या क्या कर सकते हो। अगर एक गेम हैकिंग की मैं बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट जनरल गेम हैकिंग, तो गेम हैकिंग में देखो क्या क्या चीजें हो सकती है। गेम हैकिंग के अंदर अल्टीमेटली आप बहुत सारी चीजें यूजुअली आप कर सकते हो, DLL इंजेक्शन एंड एवरीथिंग। बट जो मेन टॉपिक्स है ना, जैसे मैं बात करूँ, यू हैव अ गेम एंड यू वांट टू क्रैक इट। पहला तो ये हो सकता है कि आप उसका लाइसेंस बाईपास कर सकते हो, ठीक है। लाइसेंस बाईपास, सॉरी फॉर द स्पेलिंग ऑफ लाइसेंस। सो लाइसेंस को आप बाईपास कर सकते हो, राइट। यू कैन बाईपास द लाइसेंस एंड अल्टीमेटली जब वो आपसे पूछे, प्रॉम्प्ट करे कि मेरे को भाई आप इनपुट दे दो, मतलब सीरियल की वगैरह दे दो या फिर प्रोडक्ट की दे दो, आप उसको बाईपास कर सकते हो। सेकंड इज यू वांट टू बेसिकली डू व्हाट यू वांट टू बेसिकली crack the game, or you want to simply just go around and change the change, or सिंपली आई वुड से कि उसका पासवर्ड मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट। सो पासवर्ड से मेरा क्या मतलब है कि उसका कोई भी अगर ऐसा प्रोडक्ट की वाला फीचर है जिसमें वो एक्चुअली में प्रोडक्ट की को मैच कर रहा है ऑफलाइन लेवल पे,
राइट, तो उस वाले चीज़ को आप बाईपास कर सकते हो। सो बेसिकली जस्ट इन केस, सो ये हो गया ऑनलाइन वाला हिसाब। जब आपका लाइसेंस वगैरह ऑनलाइन आ रहा है तो आप बेसिकली यहाँ पे इफ एल्स जो होता है ना, यू कैन एक्चुअली बाईपास दैट इफ एल्स। तो यहाँ पे हम इफ वाला जो पार्ट होता है, एक इफ वाला पार्ट होता है, एक एल्स वाला पार्ट होता है, राइट। सो जो इफ वाला पार्ट होता है वो तभी काम करता है जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। सो हम क्या करते हैं, हम इसमें चेंज कुछ ऐसा कर देते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ वाला पार्ट काम करे, नहीं तो एल्स काम करे, राइट। सो वी कैन डू दैट इन दैट वर्जन कि हम लोग जब भी वो मांगेगा हमसे लाइसेंस वगैरह, तो हम उल्टा कर देंगे कि हम बेसिकली ये चीज़ प्रॉपरली स्किप कर सकते हैं, या तो उल्टा कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप कैसे करना है, वो इफ वाला पार्ट आप हटा ही दो। यू हैव टू स्टडी द कोड वेरी केयरफुली एंड देन अल्टीमेटली आप यू हैव टू रिमूव दैट कंप्लीट पार्ट फ्रॉम दैट। आपको वो पूरा कोड जहाँ पे वो एक्चुअली मांग रहा है आपसे इंफॉर्मेशन, वो हटाना पड़ता है। बट उसको हटाने के लिए the game would be connecting to the game files or the game program configurations online as well। अलग अलग लॉन्चर्स होते हैं, लाइक एपिक लॉन्चर है, स्टीम का लॉन्चर है, वैलोरेंट के लिए उसका अपना लॉन्चर है, देन उसका कनेक्शंस उसके एंटी चीट्स के साथ भी होता है। तो आपको वो सारे कनेक्शंस एक्चुअली में हटाने पड़ते हैं और गेम को कम्प्लीटली ऑफलाइन लाना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं जस्ट जस्ट कमिंग टू द क्लीन फाइल्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्लीन फाइल्स बनानी होती है गेम की। क्लीन फाइल्स बनाने के बाद फिर आप आगे जा सकते हो, राइट। देन अल्टीमेटली द सेकेंड थिंग इज दैट वी कैन डू कि अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है गेम का, तो लाइसेंस की कहीं ना कहीं आपके कहाँ पड़ी होगी, it would be stored somewhere internally in your system itself। वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में ही होगी, एंड अल्टीमेटली आप उस सिस्टम के अंदर घुस करके, मतलब आपने गलत की दी, वो गलत की जब सही की के साथ कंपेयर हो रही है तो उस कंपैरिजन को जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो यू कैन एक्चुअली गो अराउंड एंड कंपैरिजन चेक करते टाइम जो भी की है उस वो किसी ना किसी रजिस्टर में सेव हुई होगी, राइट। सो आपकी जो रियल की है वो एक रजिस्टर में जाएगी, राइट, जिसमें रियल आएगा, एंड जो आपकी फेक की है, मतलब जो आपकी और नकली की है जो आपको नहीं पता जो आपने दे दी, वो फेक की भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में जाएगी, और फिर ये वेरिएबल्स एक्चुअली में क्विट किए जाएंगे। उस मोमेंट पे मैं जाके ये वाला रजिस्टर स्टडी कर लूंगा और रियल की निकाल लूंगा। तो ये यूजुअली होता है जब आपका एक्टिवेशन ऑफलाइन होता है, सीडी से होता है, या पेन ड्राइव लगा के, या कुछ डिस्क वगैरह लगा के होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं। एंड ऊपर वाला जो है वो ऑनलाइन वाले के लिए है, एंड दिस मेथड, ये इफ एल्स वाला मेथड या फिर कोड रिमूविंग वाला मेथड ऑल्सो वर्क्स इन द एंड्रॉइड एपीकेज एज वेल। आप उसमें से भी कोड हटा सकते हो, बट यहाँ आपको चाहिए असेंबली लैंग्वेज, और एंड्रॉइड में अगर आप कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड स्माली लैंग्वेज, वहाँ पे स्माली चलती है, राइट। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। देन अल्टीमेटली द थर्ड थिंग दैट आई कैन डू ओवर हियर, जो तीसरी चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, दैट इज एक्चुअली माई रिसोर्स हैकिंग। मैं बेसिकली रिसोर्स वगैरह हैक कर सकता हूँ, एंड आई कैन एक्चुअली सी कि भाई रिसोर्स हैकिंग किस तरीके से होती है। तो रिसोर्स हैकिंग में बेसिकली मैं चीट इंजन और अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इंटरनल वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, और उन वेरिएबल से एक्चुअली पूरे गेम का कन्फिग्रेशन, पूरे गेम का जो प्लेयर ऑब्जेक्ट मॉडल वेरिएबल है उसको निकाल करके अलग अलग मॉड्स बना सकता हूँ। सो रिसोर्स हैकिंग के थ्रू आप एक्चुअली में मॉड्स बना सकते हो अलग अलग तरीके के, एंड इसके ऊपर भी हम लोग चीज़ें देखेंगे। तो देखते हैं एक एक करके देखते हैं कि कैसे हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं परफॉर्म। ऑल्सो वी कैन डू डीएलएल इंजेक्शंस एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट वो थोड़ी एडवांस चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि डीएलएल इंजेक्शन आता है इसके बाद एक दूसरे एडवांस लेवल पे, फिर डीएलएल इंजेक्शन के बाद यू हैव प्रोसेस इंजेक्शंस, और प्रोसेस इंजेक्शंस के बाद जो कुछ हद तक सेम होते हैं डीएलएल जैसा, डीएलएल इज ऑल्सो इंजेक्टिंग अ प्रोसेस, बट प्रोसेस इंजेक्शन आप अलग से भी कर सकते हो। एंड देन यू हैव बेसिकली योर कर्नल, आप खुद का कर्नल बना सकते हो, आप खुद का ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो सिस्टम। यू कैन क्रिएट योर ओन ड्राइवर टू बाईपास द एंटी चीट्स ऑफ वेरियस हैकिंग गेम्स, और सॉरी वेरियस ट्रिपल ए और डबल ए गेम्स। तो उनका जब आप बेसिकली एंटी चीट बंद कर देते हो, बाईपास कर देते हो, तो आप एक्चुअली में चीज़ें रन कर पाते हो, गेम्स को चला पाते हो। दैट इज व्हाट यू कैन डू, राइट। सो लेट्स गो अराउंड एंड देखते हैं चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। सो license bypassing and all these kind of things. So yeah, let's see if I have some example over here that I can show you. Give me a minute. And on the other hand, till the time I'm searching for it, let's also boot our Kali, right? So
काली के ऊपर भी हम बेसिकली दो सॉफ्टवेयर्स हैं या डीबगर्स है वो से जिनका हम इस्तेमाल करके एक्चुअली चेकआउट कर सकते हैं कि हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग. सो अपडेटेड माय काली टू 2025. Hope so it's upgraded fully so that we can install the tools. Let's go around with it. Okay, so let's see this one. Then we can go to Kali. So ultimately, we have this super mega protection.exe. Let's see what it actually does. So ultimately, if I open command prompt over here, you would basically see that this particular thing that we have right now over here, super mega protection.exe. ये super mega protection.exe क्या है कि ये एक्चुअली में की को लेकर के काम करता है. So अगर मैं super mega protection.exe को चलाऊँ, right, and if I give it the sample key, it would give me the license information about that software. ये मेरे को बेसिकली रजिस्ट्रेशन इन्फो देगा, यूजर नेम कौन है, उसका सीरियल नंबर क्या है, सब कुछ मेरे को प्रोवाइड करेगा. एंड यूजुअल केसेस में ये जो आपकी की होती है ना, ये सीडीज में अलग अलग जगह पे पड़ी हुई होती है. नाउ द पॉइंट इज दैट यू डू नॉट एक्चुअली नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कीज, राइट. सो हाउ डू यू गो फॉरवर्ड विद इट. सो अल्टीमेटली ये तब है जब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हो या फिर अल्टीमेटली आपको कोड हटाना हो, तो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स विद योर कोड ओवर हियर, राइट. So if you open your code in Gidra, तो ultimately आप code वगैरह remove कर सकते हो and you can understand that this particular exe over there. IDA वगैरह में भी आप कर सकते हो. IDA is also good software, IDA, but you need the pro version of it to load the exes and DLLs. For now, to understand about this, for changing the if else part over here, जैसे मुझे अगर इसका if वगैरह change करना है, तो I can basically go around and run this particular super mega protection.exe in a debugger, right. So I'll go into the tools and use win32 dbg and इसका 32-bit edition हम यहाँ पर ले लेते हैं. अच्छा, these tools are basically open source and ये बहुत सारे tools तो आधे Microsoft पे ही आपको मिल जाएंगे, Microsoft की साइट पे. These are all Microsoft tools, so you can actually use them or simply type their name on Google itself and you'll get it. So I use like Process Explorer, and then I also use win32 dbg, I use process hacker. All these tools are available. एडोबी में, अच्छा एडोबी में भी सेम चीज़ है, एडोबी में भी आप ये कर सकते हो, बट एडोबी में देर यूज टू बी दैट DLL amtlib.dll एंड उस लाइब्रेरी से हम लोग बेसिकली चीज़ें कर पाते थे. दैट यूज टू बी द थिंग, बट अभी इन्होंने बहुत सारी फाइलें चेंज कर दी है. पहले तो उसी DLL एक ही DLL फाइल में सारे के सारे क्रैक्स हुआ करते थे. आई वुड से सारे के सारे लाइसेंस हुआ करते थे. अगर आप उसको रिप्लेस करके अपने लाइसेंस से रिप्लेस कर दो तो वो ऑनलाइन कभी कनेक्ट ही नहीं करता था और डायरेक्टली काम कर जाता था. तो यू जस्ट हैड टू remove that DLL and put in the new DLL. अभी के डेट में ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई हैं. There are multiple different kind of files for different Adobe softwares. So just in case you have asked these questions, I would like to share that as well. ठीक है, although it's out of the scope for the topic, but yeah, let me give you that thing कि आज की डेट में और जो नए वर्जन्स हैं उनमें एक्चुअली कौन कौन से फाइल्स हैं जिनको आप एक्चुअली में क्रैक कर सकते हो. जस्ट अ सेक, लेट मी गिव यू, yes. So yeah, these are the files, right. For After Effects you can go around with these files. Support files के अंदर FXLIB है, DVA support है और Suite P support है. These are the files that I have found on Adobe Effects 2024. 25 में भी सेम ही है, 26 जब आएगा तब देखेंगे. So ultimately for Adobe Audition you have these 3 files, right. For Illustrator you have license in these 2 files. तो illustrator.txt से हटाना बहुत ईजी है. DVA support.dll में काम करना थोड़ा मुश्किल है, बार बार इलस्ट्रेटर क्रैश करता है. फोटोशॉप के लिए 4 फाइल्स हैं एंड प्रीमियर के लिए ये 3 फाइल्स हैं. सो अगर आप इन तीनों फाइल्स के अंदर जाकर के लाइसेंसेस रिमूव कर देते हो, सो गुड टू गो, यू हैव प्रॉपरली क्रैक्ड योर एडोबी सॉफ्टवेयर, राइट. एंड अदरवाइज सिंपली कोई क्रैकर ढूंढो, वो क्रैकर ऑटोमेटिकली आपको ये फाइल्स रिप्लेस करके दे देगा एंड यू आर गुड टू गो विद इट, राइट. So these are the files that I have also found in by going into Adobe, and 2023, 22, 24, 25 यही सब चला आ रहा है, सेम है, right.
So let's load our super mega protection.exe. So this is the exe that I have right now loaded, and you can see side में super mega protection.exe काम भी करने लग गया है command prompt, because ये process actually में run कर रहा है, तभी मुझे इसका पूरा का पूरा कोड यहाँ पे दिख रहा है. Now this is the assembly instruction code for the process, right? uh, right now let's just go into this process and check out कि एक्चुअली में आउटपुट क्या कर रहा है. अगर मैं इसको सुपर मेगा प्रोटेक्शन डॉट टीएक्सी को कोई की दे रहा हूँ तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है. बट अगर मैं इसको नॉर्मली चला दे रहा हूँ बिना की के, तो ये मेरे को कह रहा है कि द यूजेज इज लाइक दिस, सुपर मेगा प्रोटेक्शन गिव द फाइल नेम. तो मैंने एक रैंडम की बना रखी है न्यू डॉट की, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है. अगर मैं वो न्यू डॉट की फाइल इसको दूँ तो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट ओपन द फाइल. सो इसको एक स्पेसिफिक साइज या फिर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का क्यू की चाहिए, तभी ये बेसिकली कर सकता है. राइट, न्यू नहीं, न्यू. सो न्यू में भी ये जो बेसिकली हरकत कर रहा है, क्या कह रहा है, इनकरेक्ट साइज. राइट, सो इसको बेसिकली पहले तो फाइल चाहिए नॉर्मल सही फाइल, और उस फाइल का साइज भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. सो इनकरेक्ट साइज फिलहाल मेरे को बताया जा रहा है. सो दिस इज द आउटपुट दैट आई एम गेटिंग. मैं ये आउटपुट इसलिए देख रहा हूँ सो दैट आई कैन सर्च दिस आउटपुट इन द रेफरेंस ओवर हियर. सो आई कैन जस्ट सिंपली सर्च फॉर ऑल मॉड्यूल्स में सर्च करते हैं. लेट्स सर्च फॉर द स्ट्रिंग रेफरेंसेस. तो यहाँ पे सारे स्ट्रिंग रेफरेंसेस आ रहे हैं, जिसमें ऊपर ही वी कैन सी कैन नॉट ओपन फाइल, कैन नॉट रीड फाइल, अननोन एरर, एंड और इसके अंदर क्या क्या है. लेट्स सी अगर हमें कुछ मिलता है तो एड्रेस हैज नो इमेज सेक्शन, एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज सुपर मेगा प्रोटेक्शन रजिस्टर्ड इन्फो आएगा, यूजेज आ गया, सीरियल नंबर आ गया, ये सब चीज़ें दे रहा था. ये की फाइल इज इनकरेक्ट आ रहा है. राइट, सो ये सब चीज़ें मेरे को दे रहा है. सो पॉइंट इज कि आप अगर इसको की दे रहे हो, ठीक है, कोई सी भी की दे रहे हो, तो अल्टीमेटली ये की फाइल इज इनकरेक्ट बता रहा है अगर फाइल गलत हो रही है. तो हमें क्या जानना है, हमें यही जानना है कि इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जब हमारा की फाइल काम कर जाएगा. देखो, इफ वी हैव द करेक्ट साइज ऑफ द की, तो वो मेरे को बताएगा की फाइल इज इनकरेक्ट. अभी मेरे को बता रहा है इनकरेक्ट साइज. की फाइल इज इनकरेक्ट फिलहाल का आउटपुट जो है वो आ सकता है. सो आई वांट टू सी कि आउटपुट आ कहाँ रहा है. इफ आई डबल क्लिक ऑन इट तो मुझे कोड के अंदर वापस ले जाया जाएगा. सी द स्ट्रिंग्स वर हियर इन दिस राइट नाउ आई एम इन द सीपीयू. राइट, अगर आप वापस आते हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इन योर स्क्रिप्ट्स एंड योर सिंबल्स, यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर. उसके साथ साथ आप यहाँ रेफरेंसेस में जाके इन स्ट्रिंग्स को चेकआउट कर सकते हो. वापस से यू कैन चेकआउट ऑल द हैंडल्स ऑफ अ पर्टिकुलर मेमोरी. राइट, किसी भी इंस्ट्रक्शन का ट्रेस कर सकते हो पूरा कि कैसे काम कर रहा है. बट या दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन चेंज द टैब्स. तो यहाँ पर हमारे पास की फाइल इज इनकरेक्ट आ रहा है इधर. So this particular instruction is called as C70424. So this is the actual instruction location in the memory. कहाँ पे है ये instruction? C70424. So key file is incorrect is at C70424. Let's see कि C70424 को कब कॉल किया जा रहा है. कोड में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं. Let's see where it is being called. इसका मेमोरी इंस्ट्रक्शन लोकेशन ये है. इसका जो रेफरेंस लोकेशन है वो है 40407 AE6. सिंस इट इज रिटन इन 40 वाला नंबर, तो इससे भी हम लोग चेकआउट कर सकते हैं. सो 407 AE6, यहाँ 409 है, 409 है, 407, 401, 407. यहाँ पे सुपर मेगा प्रोटेक्शन का सॉफ्टवेयर चालू हो रहा है. सो इट वुड बी समवेयर ओवर हियर ओनली. राइट, सो देखते हैं, ये आया AE6 एंड दिस इज बेसिकली द पॉइंट. राइट, सो यू कैन सी दैट ये वाला वो पॉइंट है. अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वापस वहीं आ जाता हूँ. राइट, सो दिस इज द पॉइंट 407 AE6. की फाइल इज इनकरेक्ट तब आ रहा है जब यहाँ पर हम लोग एक्चुअली में इस इंस्ट्रक्शन को कॉल कर रहे हैं. सो दिस इज द मेन इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग कॉल्ड, एंड ये इंस्ट्रक्शन मेन इंस्ट्रक्शन है. दिस इज एक्चुअली कॉलिंग योर इनकरेक्ट की वाला फॉर्मेट. तो हमें बेसिकली इनकरेक्ट ही नहीं चाहिए. एंड व्हाट इज दिस, यू कैन सी दिस इज JNE. इफ आई जस्ट प्रेस स्पेस बटन, मेरे को इसका पूरा इंस्ट्रक्शन दिखेगा विच इज JNZ. एनीबडी हु कैन लेट मी नो व्हाट इज दिस JNZ ओवर हियर दैट आई कैन सी. दिस इज द मेन असेंबली इंस्ट्रक्शन. जंप इफ नॉट जीरो. जंप इफ नॉट जीरो. सो जंप इफ नॉट जीरो का क्या मतलब है? सी,
जब आप दो चीजों को इक्वेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो उसका जो आउटपुट है वो जीरो आता है अगर ट्रू है। इफ वन थिंग इज एक्चुअली इक्वेटिंग टू द अदर थिंग, तो जीरो फ्लैग रिटर्न होगा। और अगर जीरो फ्लैग रिटर्न होगा तो इफ कंडीशन काम कर जाएगी, नहीं हुआ तो जंप कर जाएगी एल्स पे। सो वी आर एक्चुअली जंपिंग टू 407 AE6 इफ द आउटपुट इज नॉट जीरो। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर इक्वेट नहीं हुआ तो एल्स पे जंप कर जाएगा, एंड एल्स का लोकेशन है 407 AE6 जहां पे लिखा है कि फाइल इज इनकरेक्ट, राइट। सो अल्टीमेटली अगर मैं जंप इफ नॉट जीरो को जंप इफ जीरो कर दूं, दैट मीन्स कि अगर आपको एल्स पे तब जंप कराना है जब जीरो आए, राइट। मतलब जब आप एक्चुअली में इक्वेट कर रहे हो और दोनों चीजें इक्वेट हो जा रही है, तब वो जंप कर जाएगा एल्स वाले पार्ट पे। दैट मीन्स इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट वुड एक्चुअली जंप टू द एल्स पार्ट। अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो इफ में लिखा हुआ है वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन ओके ओवर हियर, ये वाला इंस्ट्रक्शन आराम से हमारा चेंज हो चुका है, बिकॉज फ्रॉम दिस JNE दिस हैज बिकम JE, and this is what I wanted to do. That's it. Now I can simply patch this particular file and simply just simply export it as an exe over here. मैं simply यहाँ पे इसको patch करके रख सकता हूँ, and I can do this, right? And ultimately patch file I can basically store it over here. So if I just call it let's say hacked.exe, so this would basically be a patched file over here. So इसी को patches कहते हैं, जहां पे एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन या कुछ भी चेंज हो रखा हो। अब there could be a possibility कि ये चीज क्रैश हो जाए, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्रैश क्यों हो रहा है। हो सकता है सेम चीज का इस्तेमाल कहीं और हो रखा हो, देयर वुड बी समथिंग डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग जो आपने चेंज कर दिया, इसलिए वो क्रैश हो रहा है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्चुअली सी, राइट, इन अ पर्टिकुलर मेमोरी इंस्ट्रक्शन, दैट अच्छा ये चीज ऐसे काम कर रही है। दैट इज वाई डेनोवो एक्चुअली टेक्स टाइम, क्योंकि आपको ये सारे जंप स्टेटमेंट्स हटाने हैं। आपको कहीं पे भी अगर दिख रहा है कि इफ द कोड इज कनेक्टिंग टू एनी अदर पर्टिकुलर गेम फाइल और समथिंग लाइक दैट, तो आपको वहां से डेनोवो का वो कनेक्शन हटाना पड़ता है, एंड ब्रेकिंग दैट वन कनेक्शन ब्रेक्स द कनेक्शन ऑफ द सेकेंड फाइल। उसकी वजह से गेम क्रैश होने लगता है, फिर दूसरी फाइल में ढूंढो, तीसरी फाइल में ढूंढो, चौथी फाइल में ढूंढो, एंड मेनी ऑफ द टाइम्स दे आर इन DLLs, एंड दैट इज व्हाई डेनोवो टेक्स टाइम टू बी रिमूव्ड, क्योंकि क्लीन फाइल्स निकालने में मुश्किल हो रही है। क्लीन फाइल्स एक बार आ गई तो फिर ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह जाती, फिर आप मॉड्स वगैरह बना के उसको स्टेबल करके गेम को एक्चुअली खेल सकते हो, राइट। दैट इज द पॉइंट। सो दैट इज द थिंग, एंड अभी हमने जैसे इस चीज़ को कर दिया है, सो वी वुड हैव अ न्यू फाइल ओवर हियर विच वुड बी कॉल्ड एज hello.exe। तो ये hello.exe अभी भी सॉरी हेलो नहीं, hack.exe, ये hack.exe अभी भी प्रॉपरली काम नहीं करेगी। इट वुड बेसिकली नीड अ की ओवर हियर। जैसे मैं अभी इसको sample डॉट की दे रहा हूँ, राइट, तो यू कैन सी दैट मैंने इसको करेक्ट की दी है, तो ये क्या कह रहा है की फाइल इज इनकरेक्ट, राइट। सो अल्टीमेटली इट इज वर्किंग इन दैट वे। बट अगर मैं इसको कोई दूसरी की दे देता हूँ तो ये इनकरेक्ट साइज कह रहा है, हमें साइज वाला भी वहां पे ढूंढना पड़ेगा कि इनकरेक्ट साइज कहाँ पे आ रहा है, और वहां का साइज का भी इफ एल्स बाईपास करना पड़ेगा। एक बार साइज का भी इफ एल्स बाईपास कर दिया तो हम आराम से इसको कोई भी की दे करके रन करवा सकते हैं। गॉट इट? समझ में आई चीज कैसे काम कर रही है? हाउ डू यू एक्चुअली बाईपास द कीज एंड द लाइसेंसेस ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। जैसे एक छोटा सा जंप इंस्ट्रक्शंस अगर आप बदल देते हो तो अल्टीमेटली चीजें काम करने लगती है, राइट। एंड इफ द पासवर्ड इज एक्चुअली स्टोर्ड इन योर सिस्टम, राइट, अगर पासवर्ड एक्चुअली में स्टोर्ड है इन योर ऑफलाइन, राइट, तो भी आप वो चीज कर सकते हो थ्रू GDB और थ्रू गिटरा और अगेन थ्रू R2, रेड R2। these are certain softwares that are very very helpful in doing all these kind of stuff. So I would have certain files over here. Let's go. Is it pasting? Yeah. Okay, so we have our crack me over here, chmod plus x crack me, and let's run this crack me. Oh my bad.
So let's run this crack me, and ultimately अगर मैं crack me चला रहा हूँ तो ये कह रहा है कि the usage is actually you have to give it with the password, and आपको यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा तभी ये काम करेगा. So ऐसे केस में अगर मेरे को पासवर्ड देना है, so let's go around and give a password. Let's say संचय, मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ. तो मैंने जब संचय लिखा तो ये कह रहा है पासवर्ड संचय नॉट ओके. Now this is basically an example when the things are running in the ऑफलाइन मोड. अगर मेरा जो है पूरा का पूरा ये पासवर्ड वाला सिनेरियो वो ऑफलाइन मोड में चल रहा है तो उस केस में कैसे करेंगे काम. तो अल्टीमेटली यहाँ पे पासवर्ड सिंच इज नॉट ओके. सो लेट्स सी, कहीं ना कहीं तो मेमोरी में या रजिस्टर्स के अंदर या कोई वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर होगा ही होगा. तो जब वो डेटा इक्वेट कर रहा होगा उस मोमेंट पे जाके हम डेटा को चेकआउट कर लेंगे. सो दिस कुड बी अ स्टेप 1. अगर ये नहीं होता तो दूसरा वाला जो प्रोसेस है एफएल्स को बदलना एंड कोड को हटाना, दिस वुड बी अ स्टेप 2. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फॉलो द क्रैकिंग पार्ट, राइट. So let's basically try to see how we try to simply reverse it. So इसको reverse करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा for now GDB, right, which is basically a very good debugger, and I would सर हम भी आप ही के साथ कर सकते हैं एंड टू एंड काली लिनक्स में जैसा आप कर रहे हैं. if you have GDB installed and you're good to go with it, कर लो, कोई issue नहीं है. I have to give you this crack me once. सर जैसे जैसे आप कमांड लिखते जा रहे हो वैसे हम रन करते जाएं. हाँ कर सकते हो, बस ये क्रैक मी अपने काली में लोड कर लो. जस्ट अ सेक, आई एम अपलोडिंग इट टू मीडिया फायर, क्विकली गिविंग द फाइल टू यू. अच्छा ठीक. बिकॉज यू नीड द फाइल ना. तो फाइल हमें कैसे मिलेगी? मैं मीडिया फायर पे अपलोड कर दे रहा हूँ फाइल को, एंड मीडिया फायर पे विदाउट साइन इन एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ issues you can download that file. Just sharing the link in the chat. Okay, you can use this link to basically download the crackme file. ठीक है. So once you have downloaded, you can just open your Kali, load this file in your download this file in your Kali, and ultimately with GDB I can simply just reverse engineer it, right, and I can just simply go around and check it out कि इसके अंदर actually क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, and किस हिसाब से कौन कौन से रजिस्टर्स इसके अंदर एक्चुअली काम कर रहे हैं, एंड वो सब चीज़ें बेसिकली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे, राइट. सो अल्टीमेटली लेट्स गो अराउंड एंड लेट्स बेसिकली ट्राई टू check out how it is actually working with my GDB over here, right. So GDB के साथ because मुझे यहाँ पे crackme फाइल लेनी है, तो अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे GDB के साथ इसको ओपन कर लूँगा. सो आई जस्ट सिंपली राइट इन GDB और साथ में अपनी फाइल को रन कर देंगे इसके साथ crackme, राइट. सो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा ये कह रहा है ठीक है नया काली है, GDB इंस्टॉल कर लेते हैं हम भी. इट्स नॉट अ वेरी बिग टूल, छोटा सा टूल है. सो जस्ट एक 4 MB का डाउनलोड है. सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट इन योर काली एंड वी आर गुड टू गो ओवर हियर. लेट इट इंस्टॉल. ठीक है, वापस लगाते हैं GDB क्रैकमी. तो जब आप GDB क्रैकमी लिखोगे इस तरीके से तो ये क्या होगा कि क्रैकमी वाला जो आपका प्रोग्राम है ये एक्चुअली में रन होने लग जाएगा, एंड बेसिकली यहाँ पे GDB के साथ ही रन हो रहा है, ठीक है. एंड अल्टीमेटली इस केस में अभी आज जैसे GDB रन हो गया है तो आई कैन बेसिकली गो अराउंड एंड आई कैन बेसिकली check out its functions and all these things. तो अभी यहाँ पे ये सिम्बल्स वगैरह पढ़ रहा है क्रैकमी के. हर एक प्रोग्राम, हर एक डिबगर, हर एक पर्टिकुलर रिवर्स इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एक्चुअली सिम्बल्स पढ़ता है, बिकॉज हर एक एप्लीकेशन का एक सिम्बल ट्री या फिर एक सिम्बल टेबल होता है. वो तब आपको समझ में आएगा जब आप एक्चुअली में कोई लैंग्वेज को क्रिएट करते हो तो आप उसका सिम्बल बनाते हो. सबसे पहले सिम्बल ट्री एंड सिम्बल टेबल्स बनाया जाता है हर एक कंपाइलर के लिए भी, हर एक लैंग्वेज के लिए भी. एंड हर एक लाइक सी में अगर मुझे इसको डिकम्पाइल करना है, सी से असेंबली में लेके जाना है, तो सिंबल्स पढ़ के मैं बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि सिमेंटिक्स क्या है पूरे के पूरे EXE का, राइट. सो दिस पर्टिकुलर थिंग is done and now I can just type in info functions to basically check out कि इसमें कौन कौन से functions काम कर रहे हैं.
So यहाँ पे we have a init function जो initialize कर रहा है, we have a string comparison function, printf or basically the cout or print functions, we have compare password functions, main function, finish function जो खत्म करेगा कोड को. So we are actually good to go with strcmp. अब start या get password, compare password, main भी आप checkout कर सकते हो. But I'm more interested right now it's in the strcmp functions. So string comparison is basically the main function जो actually compare करता है strings को. And उसका memory instruction क्या है? 400520. So मैं चाहता हूँ कि मैं कोड को रन करूँ और जैसे ही मेरा कोड रन हो वो यहाँ पर आकर रुक जाए. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल माई कोड इज वर्किंग, दिस हुआ, दैट हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, उसके बाद जैसे ही स्ट्रिंग कंपैरिजन होगा वहां पे मेरा कोड आके थम जाएगा, रुक जाएगा. जैसे ही मेरा कोड आके रुकेगा उस टाइम पे जितने भी रजिस्टर्स पॉपुलेट हो रखे होंगे मैं सारे रजिस्टर्स को जाके एक बार स्टडी करूंगा, देखूंगा उनके अंदर, तो किसी ना किसी में मेरा एक्चुअल पासवर्ड भी होगा. ठीक है. तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रॉन्ग पासवर्ड के साथ रन करूँ और जहां पे स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है वहां जाकर रुक जाऊँ. सो स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे सेट कर देंगे हम हमारा ब्रेक पॉइंट. ब्रेक पॉइंट को सेट करने के लिए लिखना है बी एंड देन एस्टरिस्क के साथ आप यहाँ पे दे सकते हो अपना कोड, मतलब सॉरी अपना ब्रेक पॉइंट जहां पे भी आपको देना है. सो जैसे ही मैंने ब्रेक पॉइंट दिया तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट हो चुका है. नाउ आई नीड टू रन माई प्रोग्राम. सो इसको रन करते हैं संचय के साथ. संचय वुड बी द पासवर्ड फॉर इट. मैंने रन किया और ब्रेक पॉइंट 1 हिट हो गया. दिस इज व्हाट यू नीड टू सी. अगर ये लिखकर नहीं आ रही लाइन ब्रेक पॉइंट 1 हिट या फिर ब्रेक पॉइंट 1 इस तरीके से, दैट मीन्स वो ब्रेक पॉइंट हिट नहीं हुआ है और आपका प्रोग्राम सही से रन नहीं हुआ. ऊपर हमने ब्रेक पॉइंट सेट करा एंड यहाँ पर ब्रेक पॉइंट 1 हिट हो गया जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन करा. तो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है. यू कैन सी क्रैक मी के बाद संचय लेकर एज अ पासवर्ड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ and this breakpoint 1 has also been working now. You can also see in the PS3, जैसे यहाँ PS3 अगर मैं पूरा प्रोसेस ट्री दिखाऊँ फिर से करते हैं. सो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें हमारा क्रैक में भी दिख जाएगा जो हमने अभी रन किया है. नीड टू फाइंड इट आउट. लेट्स सी, PS में देख लेते हैं. grep crack me. So yeah, crack me is working at 5866 process ID and yes, it is there. ठीक है, it is actually there over here. ऊपर ट्री में मेरे को प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, राइट, बट हाँ ढूंढना पड़ेगा, ऐसे इधर ही कहीं होगा. सो अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो व्हाट वी हैव फाउंड ओवर हियर. हमने यहाँ पे अपना प्रोसेस ट्री प्रोसेस बेसिकली अपना रन कर दिया है. सो विद द प्रोसेस दैट इज रनिंग ओवर हियर वी कैन सी दैट ओके our process is right now running and we can now basically check out our what we call it transistors. So ट्रांजिस्टर्स नहीं, एक्चुअली रजिस्टर्स. तो इस टाइम मुझे अगर रजिस्टर्स देखने तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इन्फो रजिस्टर्स और मुझे दिख जाएंगे इस वक्त के सारे रजिस्टर्स. सो दीज आर ऑल दी रजिस्टर्स दैट यू कैन सी एंड अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे पास RAX है, RBX है, RCX है, RDX है, RSI, RDI, RPB, RSP, ये सब एक्चुअली में रजिस्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं. सो ऑल दीज रजिस्टर्स आर देयर और ये है उन रजिस्टर्स का एक्चुअली द मेमोरी लोकेशन. मैं अब इन रजिस्टर्स को स्टडी करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ इसके अंदर है क्या. सो RAX के लिए मैंने ये कॉपी किया और मैंने यहाँ पर लिखा x/s. This is basically how to print the value of a register. So then give the location of that register, enter, और ये आ गया आपका एक्चुअल पासवर्ड, माई मोर सिक्योर पासवर्ड. तो RAX is basically having your password. रही बात RBX की, उसके अंदर क्या है तो आप उसको भी कॉपी करके चेकआउट कर सकते हो. x/s RBX, इसके अंदर कुछ भी नहीं है. देन हम बेसिकली RAX RBX चेक कर चुके हैं. RDX को भी चेक कर लेते हैं, इसके अंदर क्या है. RDX and RSI have the same value, you can see, and RAX and RBP RDI and RX are having the same value. इन दोनों में एक्चुअल पासवर्ड है और RDX and RSI में हो सकता है मेरा पासवर्ड हो, राइट. सो ये मूव हुए होंगे और मूव के टाइम पे हमने इनको रोक दिया. तो अल्टीमेटली दैट इज वाई एक रजिस्टर और दूसरा रजिस्टर, दो रजिस्टर्स में एक्चुअली सेम पॉसिबल वैल्यू है. इसको और बेटर तरीके से देखने के लिए आप एक्चुअली में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, R2 का, और रेड R2 बेसिकली इज अ सॉफ्टवेयर और अ डीबगर थ्रू विच यू कैन चेक इट आउट. सो दिस इज बेसिकली संचय ओवर हियर दैट वी कैन सी जो हमने दिया था. तो दिस इज द रॉन्ग पासवर्ड, दिस इज द राइट पासवर्ड. तो अभी अगर मैं ये पासवर्ड लेकर के चलता हूँ
So if I exit and run this crack me with my password, तो पासवर्ड ओके बताता है, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली हाउ यू कैन सर्च फॉर द पासवर्ड्स इफ इट इज एक्चुअली इनसाइड द कोड, राइट. समझ में आई कहानी? I know it would be a little bit you know typical to understand. I would not say difficult, but basically पहली बार है, if you are learning registers or reverse engineering, that would be a little bit here and there कि चल क्या रहा है वाली चीज हो रही होगी. But are you getting the point what I am trying to do or what I am trying to solve? कि मैं ये वाला लैब अगर लेके चल रहा हूँ तो क्यों लेके चल रहा हूँ? Are you getting that particular thing or not? एक बार yes or no बता देना chats में जल्दी से. We are getting with the last and uh, game based example, तो उसको भी अभी लेकर चलते हैं. Okay. If there's a file like PDF with password with the idea of extracting password will be same. नहीं, अगर PDF फाइल है with a password तो आपको उसका हैश निकालना पड़ेगा, हैश निकाल के आपको उसे brute force करना पड़ेगा with hashcat, right? Not properly, ठीक है कि वरदान if you need to understand it in a much more better manner, ठीक है, so we can connect after the meeting, after this particular session. मैं usually कभी free रहता हूँ तो हम लोग like connect करके बात कर सकते हैं इस बारे में या कभी और, right? So obviously that can be done if you want to learn more about this thing, because अगर पहली बार आप assembly और इन सब चीज़ों में देख रहे हो ना तो it would be a little bit here and there for the things, right? That's the thing, ठीक है. So let's go ahead and let's take one more example. Hope so you'll not get a headache after that. So I'll basically take Assault Cube, right, as the game over here. Now this particular game is actually one of the best game to take the examples over here, because this actual game is doing a lot of stuff, right? It's basically the game like how actually the games are there, right? So we have like a lot of games and ultimately जो हमारा Assault Cube है ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हम लोग Valorant या कोई और गेम अगर लेकर चलते हैं CS:GO टाइप का. So we have that particular game over here. So अभी इस गेम के अंदर देखो we have multiple things, right, that we can do. So let's go and open a map. So single player mode है, we want to go with an empty map, and this is our basic game over here. Now in this particular game I can do everything and anything that a typical game would basically have. I can shoot the guns, I can basically go around with the other things. So इसको मैं रिसोर्स हैकिंग इसके अंदर कैसे करूँगा? आई वॉन्ट टू डू द रिसोर्स हैकिंग इन दिस. तो रिसोर्स हैकिंग करने के लिए मैं यहाँ पे बेसिकली लेकर आऊँगा हमारी एक पर्टिकुलर engine go that is called as our cheat engine. So let's basically go around with the cheat engine and let's open the cheat engine over here, right? So yes, we have the cheat engine. So this is basically our cheat engine over here. Game को रखते हैं इधर and cheat engine को basically रखते हैं इस side. And cheat engine पहले कभी किसी ने use किया है? Okay, Pralin has used. वेदांत नहीं किया है. Made cheat tables, that's great. Okay, Prashita has also used. So basically cheat engine क्या करता है? एक बहुत बेसिक सी चीज़ बताओ जो मोस्ट ऑफ द गेमर्स करते ही करते हैं cheat engine का इस्तेमाल करके. They basically scan the game. So cheat engine is basically something through which you can actually scan a particular game. So ये Assault Cube को मैंने लिया और ओपन कर लिया. So all the memory variables of this particular game would be launched or would be basically read by the cheat engine. ये cheat engine सारे के सारे उसके memory instructions को read करके अपने पास रख लेता है, और जब ये अपने पास रख लेता है तो ultimately we can go around and change or manipulate those particular memory variables. तो अभी जैसे हमारी health कितनी है? We have 100 as the health right now. You can see that we have this 100 health. तो मैं यहाँ पे अगर scan करता हूँ 100, right, और first scan करता हूँ
तो all the variables would come which are actually having 100 health over here, right? And ये सारे के सारे variables actually 100 health लेकर चल रहे हैं, and ultimately there are various variables. कुछ यहाँ पर black variables हैं, कुछ green variables हैं. So basically ये जो particularly black वाले variables हैं, these variables are the dynamic variables and green ones are the static variables. तो dynamic variables कौन से होते हैं? जो आपके पीसी में अगर ये सेम गेम खुलेगा तो दिस वुड बी अ डिफरेंट वेरिएबल, या आपके पीसी में किसी और लोकेशन पे जाकर स्टोर होगा. बट ग्रीन वाले वो वेरिएबल्स हैं जो एक्चुअली मेरे पीसी में और आपके पीसी में, या अगर मैं इस गेम को बंद करके दोबारा खोलता हूँ तो हर बार सेम मेमोरी लोकेशन लेंगे. सो अल्टीमेटली अगर सेम मेमोरी लोकेशन ले रहे हैं, मैं तभी वो मॉड बना सकता हूँ किसी भी चीज़ का. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? कि अगर मैं एक मेमोरी लोकेशन लेकर के मॉड बना दूं कि इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू हमेशा 100 कर दो, राइट, टू मेक अ गेम लाइक to basically make a infinite health mod, तो अल्टीमेटली वो सिर्फ मेरे लिए बनेगा बिकॉज मैं उसको एक डायनेमिक वेरिएबल के लिए ले रहा हूँ. आई एम बेसिकली टेकिंग इट फॉर माई सेल्फ, राइट? बट इफ आई वॉन्ट टू मेक अ मॉड फॉर द कंप्लीट community of the gamers for this game, I have to take I have to basically take in the static variable जो तुम्हारे लैपटॉप में, तुम्हारे पीसी में हर बार जब तुम गेम का इंस्टेंस रन कर रहे हो तो सेम मेमोरी में जाके सेम लोकेशन पे जाके वो जगह बनाए. सो अल्टीमेटली दैट इज व्हाट आई वुड नीड ओवर हियर. सो आई नीड टू वर्क ऑन दीज ग्रीन वेरिएबल्स. बट अभी देखते हैं कि कोई ग्रीन वेरिएबल हमें मिलता है या नहीं मिलता. So all these variables have 100 as the health value, but I want to understand कि इनमें से कितने ऐसे variables हैं जो एक्चुअली में हेल्थ के हैं. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं हेल्थ को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, राइट? और फिर से स्कैन करूंगा. सो राइट नाउ माई हेल्थ वॉज 100, अब मेरी हेल्थ 73 हो गई. अब मैंने यहाँ पर डाला 73 और मैंने दिया नेक्स्ट स्कैन. तो खाली दो ही ब्लैक वेरिएबल्स आए. दैट मीन्स दो वेरिएबल्स, और दोनों ही स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं हैं, दोनों ही डायनामिक वेरिएबल्स हैं, राइट? सो द पॉइंट इज, अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल एक्चुअली हेल्थ वाला वेरिएबल है. सो इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ, चेंज करके इसकी वैल्यू कर देता हूँ 200, बट द हेल्थ डज नॉट चेंज. सो दिस इज नॉट माई एक्चुअल वेरिएबल, राइट? इसको कर देते हैं डिलीट. दूसरा वाला लेके आते हैं, इसकी वैल्यू 200 कर देता हूँ. क्या हेल्थ चेंज हुई? हाँ जी, हेल्थ चेंज हुई. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज माई डायनामिक हेल्थ वेरिएबल. तो इसका नाम लिख लेते हैं डायनामिक हेल्थ वेरिएबल, राइट? सो द पॉइंट इज कि डायनामिक हेल्थ वेरिएबल जो है, अब हमें इसको यूज करके स्टैटिक हेल्थ वेरिएबल ढूंढना है, क्योंकि स्टैटिक हेल्थ वेरिएबल से ही आपका एक्चुअल मॉड क्रिएट होगा, राइट? तो स्टैटिक हेल्थ वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जो आपके मेरे सबके पीसी में एक्चुअली में सेम जगह लेगा मेमोरी में जाकर. तो मेरे लिए चीज़ आसान होगी. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे कि अगर मुझे आपके घर पे एक लेटर भेजना है तो आपके घर का एड्रेस हमेशा सेम रहना चाहिए. इफ़ यू आर चेंजिंग योर हाउस अगेन एंड अगेन और मेरे पास खाली पुराना एड्रेस है आपका, तो वो लेटर कभी आपको रिसीव ही नहीं होगा. So I have to know your address before sending you the letter. But what I want कि मुझे हमेशा आपका एड्रेस याद ना रखना पड़े. मैं जनरली एक चीज़ बना दूँ और वो लेटर्स जाते रहे आपके घर पे. सो ऑब्वियसली दैट इज व्हाट आई वांट टू मेक ओवर हियर. कि मैं एक जनरलाइज मॉड बनाना चाहता हूँ, बट जो मेमोरी लोकेशन है उस वेरिएबल का, हेल्थ वेरिएबल का, वो फिलहाल डायनामिक वाला मुझे मिला है और वो हर जगह चेंज होगा, राइट? दैट वेरिएबल वुड चेंज एवरीवेयर. एंड मुझे बेसिकली एक ऐसा लोकेशन चाहिए जहाँ पे वो चेंज ना हो. एंड यूजुअली ऐसे गेम्स में क्या होता है कि ये जो मेन प्लेयर है ना, ये जो मेन स्प्राइट है जिसके हाथ में गन होती है, द मेन प्लेयर, the the variable of this particular player actually remains the same in all the game. इसको बोलते हैं player object variable. तो अगर मैं ये player object variable वाला रजिस्टर ढूंढ लेता हूँ, राइट, तो अल्टीमेटली मेरे को ये पता लग जाएगा कि इसके रेफरेंस में और कितने ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एक्चुअली में आपका बेसिकली हेल्थ या फिर जो बाकी के और वेरिएबल्स हो सकते हैं एसोसिएटेड लाइक आपका एमो एंड ऑल, वो कैसे उससे रेफरेंस हो रहे हैं, राइट? सो दैट इज द थिंग.
what if there are multiple variables having same value? Are we searching stuff out by values? That is what we did ना. पहले हमने 100 हेल्थ थी तो 100 सर्च किया, फिर हमने उसको बदला और बदल के हमने फिर से सर्च किया, तो हमें बेसिकली स्पेसिफिकली दो ही वेरिएबल्स मिले. यूजुअली दो तीन चार ही वेरिएबल्स आएंगे, राइट, एंड दैट वुड बी योर मेन थिंग. बट अब इससे ढूंढना है स्टैटिक वेरिएबल, राइट. सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक बार चेक कर लूँगा कि इसके ऊपर लिख कौन रहा है. what kind of things are actually writing onto this address, मतलब ये डायनेमिक हेल्थ को चेंज कौन कर रहा है. तो मुझे इसके लिए बेसिकली डीबगर चलाना पड़ेगा और डीबगर चला के यहाँ पे मुझे साथ साथ में फिर से अपनी हेल्थ को चेंज करना पड़ेगा. जैसे ही हेल्थ चेंज होगी तो यहाँ पर कुछ कुछ होगा. तो देर इज अ मूव इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड. मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो मिलेगा. पुराना वाला डीबगर आप बंद कर सकते हैं, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी नीड. इस इंफॉर्मेशन के अंदर बताया जा रहा है कि जैसी आपकी हेल्थ चेंज होती है तो ये इंस्ट्रक्शन काम करता है. दिस इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली डूइंग अ मूव इंस्ट्रक्शन, एंड व्हाट इट इज एक्चुअली डूइंग, ये आपका EDX के अंदर EC ऑफसेट डालता है और EX के अंदर डाल देता है पूरी की पूरी चीज. बेसिकली EDX है, दिस कुड बी समथिंग, EDX कुड बी समथिंग. EDX में EC स्टेप्स मूव करता है. बेसिकली इसको ऐसा समझ लो कि आप फिलहाल अराउंड EC स्टेप्स फर्दर, मतलब EC कदम आगे चले. EC भी एक नंबर ही है, राइट. इट्स अ नंबर दैट इज टेकन इन हेक्साडेसिमल, इसलिए वो बड़ा लग रहा है. EC इफ यू कन्वर्ट इट इनटू योर डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम, ये बनेगा लाइक C का और E का आप कन्वर्ट करोगे तो एक लाइक 3 या 4 डिजिट का डेसिमल नंबर या फिर 8 बिट का बाइनरी नंबर बनेगा. सो इतने स्टेप्स आप आगे बढ़ो अगर रैम में, राइट. तो अल्टीमेटली दिस इज द प्लेस वेयर EDX प्लस EC वुड बी. इस पर्टिकुलर चीज को आप उठा करके EAX में डाल दे रहे हो. तो हो सकता है जो EAX है वो मेरा डायनामिक हेल्थ वेरिएबल है, राइट. क्या है? डायनामिक हेल्थ वेरिएबल. और EC कदम जो मैं आगे बढ़ा हूं वहां पे जो मुझे चीज मिल रही है वो मेरा एक्चुअली में मेन हेल्थ वेरिएबल होगा, यानी कि स्टैटिक हेल्थ वेरिएबल होगा. दैट मीन्स कि अगर EDX मेरा प्लेयर ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, अगर मैं उसमें EC स्टेप्स आगे बढ़ूं तो वो मेरा हेल्थ वेरिएबल हो सकता है स्टैटिक वाला, एंड उस चीज को कॉपी किया जा रहा है EAX के अंदर. दैट वुड बी माय डायनामिक वन, जो मुझे यहाँ भी देखने को मिला है इस पोजिशन पे, राइट. सो द पॉइंट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज, ये कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे से 12 कदम आगे कोई और है, राइट. सो उस कोई और को हम तलाश रहे हैं, राइट. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड विद. यहाँ पे आप EDX पे तो हो ही, EDX से मैं EC स्टेप्स आगे जाऊंगा तो वहां पे हो सकता है एक वेरिएबल पड़ा हुआ. आई डू नॉट नो व्हाट दैट वेरिएबल इज, बट दिस इज एक्चुअली माय अजम्पशन कि वो स्टैटिक हेल्थ वेरिएबल हो सकता है, राइट. अगर वो स्टैटिक हेल्थ वेरिएबल है तो मानो या ना मानो EDX हैज टू बी योर प्लेयर ऑब्जेक्ट वेरिएबल. और अगर हमें ये मिल गया देन कोई दिक्कत ही नहीं है. वी कैन फाइंड ऑल द रेफरेंसेस कि अगर आप मैं इससे एक कदम आगे बढ़ूँ तो वो कौन सा पर्टिकुलर वेरिएबल है, मैं अगर इससे 2 कदम आगे बढ़ता हूँ तो वो क्या है, 3 कदम आगे बढ़ता हूँ तो वो क्या है. बिकॉज इसी कदम आगे बढ़ने पे मेरे को हेल्थ वेरिएबल मिल रहा है. तो 10 कदम आगे बढ़ने पे क्या है, 15 कदम आगे बढ़ने पे क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गन कौन सी मैंने ले रखी है, गन के साथ साथ में मेरे गन में एमो कितना है, उसका बेसिकली एमो का जो रिफिल है वो कितना है, उसके अलावा मैंने कितनी बार इसको रिलोड किया है, कितना मेरी मेरी हेल्थ है, सारे स्टैट्स, हर एक चीज मैं, मेरी फिलहाल पोजीशन क्या है, हर एक चीज मैं बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल कर पाऊंगा इफ आई फाउंड द एक्चुअल प्लेयर ऑब्जेक्ट वेरिएबल, राइट. सो अल्टीमेटली उस चीज को लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस EDX के ऊपर सर्च करूंगा. EDX की वैल्यू है फिलहाल 7CED58. सो लेट्स डू अ न्यू स्कैन. दिस टाइम वी आर डूइंग अ हेक्साडेसिमल वन, एंड ये EDX की क्या वैल्यू है, वी आर टेकिंग इट एज 7CE D58 D58. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. सो अगर मैं इस चीज को स्कैन करता हूं तो मेरे को मिलेंगे कुछ वेरिएबल्स, एंड मजे की बात मेरे को मिल गए हैं ग्रीन वेरिएबल्स. दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं
प्लेयर ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो सकते हैं। तो पहला वाला उठा के देखते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, डबल क्लिक किया, नीचे आ गया, एंड अगर मैं इसके अंदर इसी कदम आगे जाऊं तो इट शुड शो माय न्यू हेल्थ 164। तो ये चीज हम चेक करते हैं। ऐड एड्रेस मैनुअली पे क्लिक कर सॉरी ऐड एड्रेस मैनुअली पे क्लिक करेंगे, वी विल क्लिक ऑन पॉइंटर बिकॉज इट्स अ पॉइंटर, right? So what I can do is I can basically just check it out manually कि अगर मैं इस 7CE D58 से इसी कदम आगे जाता हूँ, इसी स्टेप्स आगे जाता हूँ, तो इट शुड शो माय करंट हेल्थ। सो लेट्स जस्ट बेसिकली ट्राई ओवर हियर। सो क्या है हमारा EDX का वैल्यू? EDX का वैल्यू है 7CE D58, राइट? सो वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर, एंड इसके अंदर जो पॉइंटर मुझे लेना है वो लेना है EC। EC लेते ही यहाँ पर मेरे को क्या मिला? ओके, दिस इज द एड्रेस, add offset, okay, not this offset, remove offset. So this is 54D0A4, okay. So यहाँ पे this is not actually showing my variable, right? एक बार और इसमें try करते हैं। So pointer, and let's basically type the same thing over here. So इसके अंदर हम जा रहे हैं 5 से, ओके, इसकी वैल्यू पे ट्राई कर लेते हैं एक बार और। सो द वैल्यू इज 7CE D58 एंड इसका जो एड्रेस है वो ये है 57 वाला, तो इसके ऊपर ट्राई करते हैं बिकॉज हमें एड्रेस से एक्चुअली आगे जाना है ना, हम उसकी वैल्यू से आगे जा रहे थे अभी, सो वी नीड टू बेसिकली गो फॉरवर्ड with its address, my bad. So let's type in the address over here. So यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया 57E0A8, right? This is basically the address over here. इस एड्रेस से अगर मैं इसी स्टेप्स आगे जाऊँ तो ये क्या दिखा रहा है ऊपर? 164, which is the actual health, right? So this is actually my player object variable, right? Player object variable. So I have got the player object variable, and इसके रेफरेंस में जो मैंने ये चीज निकाली है, this has to be the static health over here. This is what I wanted. अब मैं डायनेमिक वाला हटा सकता हूँ, एंड एनी टाइम इफ आई वांट मैं यहाँ पर चीज़ें कुछ भी चेंज करूँगा, उस हिसाब से मेरा हेल्थ चेंज हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, बट प्लेयर ऑब्जेक्ट वेरिएबल को मैं बेसिकली और भी चेकआउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, disassemble the memory region, I can go into the tools, I can do like the DLL injections over here as well, but for now we'll dissect the data structures and ultimately we'll go into इसको भी बंद कर देते हैं। वी कैन गो इनटू आवर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है? 57E0A8, तो वो चीज़ यहाँ लिखते हैं 57E0A8, और इसके डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर लेते हैं। सो 57E0A8 के डेटा स्ट्रक्चर्स इस वाले ड्रॉप डाउन में हैं, एंड ऑल द काइंड ऑफ रेफरेंसेस दैट आई कैन मेक विद दिस एंड द सब रेफरेंसेस सब यहाँ पर अवेलेबल हैं मेरे पास। सो अल्टीमेटली एवरी डिटेल, एवरीथिंग आई हैव, हर एक पॉइंटर यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो सारी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई हैव 12 बुलेट्स इन इट एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वुड बी देयर ओवर हियर। हेल्थ भी आप मुझे दिखनी चाहिए। सो लेट्स जस्ट चेक आउट, ये रही मेरी हेल्थ 5555, एंड देन राइट नाउ आई हैव 12 बुलेट्स ओवर हियर। तो ये रहा एक 12, इसको चेंज करके अगर मैं 55 कर दूँ, now I have the 55 bullets, ये मेरा ammo हो गया, primary ammo, then this 40 is there, इसको अगर मैं 400 करूँ, do okay, okay, so 400 नहीं हुआ, let's do once again, so this time ये 400 हो गया, so ये इसका reload ammo है तो वो भी यहाँ पर आ गया। So ultimately I can now access all its variable, और ये सारे variables मेरे जो है main variables हैं इसके अंदर। ये string भी ले रहा है with my name in it, right? So all these variables are actually going over here। ये सारे के सारे variables जो है मेरे गेम के main variables यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, which I can basically check it out over here। So that's basically how you can actually do memory scanning and all these kind of things, right? You can use behavior scans and initial, then increase, decrease, and change, and edit as shortlisted addresses, then
one that actually changes gameplay in the real. That can also be done, right? That you can basically use pointer scans, and you can basically go around and uh, do the behavior scans to understand it in a much better manner. वो भी आप कर सकते हो. What's the thing with 9999 plus which never gets low? Might be it's frequency or something. कुछ होगा अंदर ही अंदर जो चल रहा होगा, right? उसका बेस वेरिएबल होगा या कुछ और होगा, जो ये माइट भी अपने अंदर लेकर चल रहा होगा, द कॉन्फ़िगरेशन और some variable which needs to be at that value. Don't know, I have to research on that, right? But इस गेम को मैं यूजुअली टेस्टिंग पर्पस के लिए ही लेता हूँ, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. इसके डेटा स्ट्रक्चर्स को डाइसेक्ट करके कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कब क्या कर रहा है वो आप एक्चुअली में अंडरस्टैंड कर सकते हो. लाइक यू कैन सर्च फॉर द वैल्यू which in the game would be greater than 9999 plus, and then ultimately आप उसके अराउंड पता लगा सकते हो, because there are various scan types that you can use. Bigger than 9999 सर्च कर लो, सारी वैल्यूज आ जाएंगी, then you can just actually search around with that, right? So ये सब चीज़ें हैं, and yeah, that is what game hacking is. Like मैंने तीनों तरीके के एग्जाम्पल्स ले लिए हैं. टेकिंग एन एग्जाम्पल वेयर आई हैव टू चेंज द if else condition or remove the code, taking an example where I can basically go around and just simply check the register while it's equating in an offline program like Adobe हो गया, या फिर Portswigger का burp suit हो गया, all these kind of tools. Otherwise, if you want to create a mod out of it, तो कैसे उसमें वेरिएबल्स ढूंढने हैं यूजिंग चीट इंजन, वो भी मैंने बता दिया है अभी के लिए. सो दिस इज बेसिकली the thing. On this particular thing we can go around and conclude the session, I would say. And you can basically practice these sessions and ultimately practice all these kind of things. Cheat engine इसके लिए चाहिए and बाकी सब चीज़ें चाहिए अगर, तो you can actually go to my profile as well, my GitHub profile, which is github.com/sanchayofficial. I go by the username sanchayofficial everywhere on each and every social media, be it LinkedIn, be it Facebook, be it Instagram. I'm not on Twitter, so you cannot find me there. उसके अलावा you can find me anywhere, and you'll be able to get the things. So GitHub पे भी जो है here in this particular repository. So meetups PPT के अंदर I took this thing in BSides Mumbai in 2024. So you can basically go around and you can find all the resources over here. ठीक है. So that is all for today, right? And इसी में इसका पूरा पीपीटी भी है. तो अल्टीमेटली इस पीपीटी में इफ यू गो इन द लास्ट यू विल बी एबल टू फाइंड द रेफरेंसेस एंड अदर रिसोर्सेज दैट इफ यू वुड वांट टू लर्न मोर अबाउट रिवर्स इंजीनियरिंग और गेम हैकिंग. बहुत सारे कंपाइल्ड रिसोर्सेज है जो मैंने उधर क्यूआर कोड के basis पे डाल रखे हैं. So you can go into that particular thing and also get your resources ready if you want to go around it. Okay, so that is all from my side, right? Hope so कुछ सीखा है. If you have learned anything new today, कुछ नया समझ में आया, नया सीखने को मिला, तो प्लीज एक इमोजी या yes लिख देना चैट में, so that I can safely say that okay, somebody has learned something new today. Thank you, Sanchay. That was a proof that sometimes the fastest way to learn hacking is through games, and also proof that anti-cheat engines really hate smart people. Your lecture, your session literally took us back to our college classes. We thoroughly enjoyed it. That's a wrap for day two. Tomorrow, we get into serious stuff with Trijal Gandotra, who who's bringing OffSec fundamentals, network exploits. In short, if today was playtime, tomorrow is where the homework begins. Same time, 9 p.m. See you all then. Bye. Thank you everyone. Thank you Sanjay. Thank you very much Yeah. for joining. Okay, welcome, and thanks for everyone for listening till here. And yeah, congratulations and all the best for the upcoming sessions as well. Thank you. Good night. Good night. Good night, everyone.